Assalamu alaikum students. Welcome to the online lecture series of AI. I hope you are fine and enjoying this video lecture series of artificial intelligence. हम पिछले दो लेक्चर्स से मशीन लर्निंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं. So in our previous lecture we talked about the definition of machine learning and the different applications of ML, and we also talked about the different types of machine learning. So आज हम उनकी ज़रा definitions को देख लेते हैं. So there are three different types of machine learning: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So in supervised learning, there are classification and regression, and in unsupervised learning, clustering, density estimation, and dimensionality reduction. So in our coming lectures, I will discuss classification algorithms, different classification algorithms, regression problems, regression algorithms, clustering. इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे. So before going into the detail of these algorithms, I would like to discuss the definition of the difference between these different types. So what is the supervised learning, machine learning? So the type of machine learning in which the training data X have labeled T is called supervised learning. So just look at this symbol, जो कि क्या है कि small case के अंदर है और ये bold है. In the same way T also a bold and small case letter. So ये किस चीज़ को represent करता है? In mathematics we always write our vector in small case and bold. So X is not a single value, this is a vector. So just look at this point, this vector, that X is equal to this vector. So x1, x2, x3 up to xn. In the same way T also a vector. So here is the t1, t2, t3 up to tn. So क्या है यहाँ पे supervised machine learning किसको कहते हैं? The type of machine learning in which the training data, as we talked about the concept of training data and testing data in our previous lecture, के हम data को दो categories के अंदर divide करते हैं. Training data से हम अपने model को क्या करते हैं? Train करवाते हैं. So if the training data is labeled, have labeled T, हमारे पास जो है उसके लेबल मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने इमेजेस की बात की थी कि इमेज फॉर एग्जांपल फर्स्ट इमेज इज जो हमारे पास फर्स्ट इमेज है वो 0 डिजिट की है तो उसका लेबल यहाँ पे 0 पड़ा हो. इन द सेम वे द सेकंड इमेज जो कि उसका कह लें कि ये फर्स्ट डिजिट की है और उसका लेबल 1 यहाँ पे लिखा हो. इस तरह से अगर 2 डिजिट की है थर्ड वाली इमेज तो उसका लेबल जो है वो 2 यहाँ पे लिखा हो. इन द सेम वे xn के ऊपर जो भी डिजिट है उसका जो लेबल है वो यहाँ पे मौजूद हो. तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? ये सुपरवाइज्ड लर्निंग बन. So in supervised learning we will cover the regression algorithms and classification algorithms. So what is the regression? What is the difference between regression and classification? So just look at this point, that find the continuous value for x. This is a regression. मतलब x क्या है? वो इनपुट है. अगर इस इनपुट के लिए जो लेबल हमने करना है इसको x को, तो वो अगर हमने कंटिन्यूस वैल्यू के साथ इसको लेबल करना है तो वो हमारे पास रिग्रेशन बन जाएगी. बट इफ़ वी विल असाइन द x टू डिस्क्रीट कैटेगरीज, सो देन ये हमारे पास क्या बन जाएगी? क्लासिफिकेशन बन जाएगी कि उसको किसी एक डिस्क्रीट कैटेगरी के अंदर असाइन कर दें. फॉर एग्जांपल 0 आता है डिजिट तो हम 0 के अंदर उसको असाइन कर देते हैं. 1 डिजिट वाली इमेज आती है तो हम उसको 1 डिजिट के साथ असाइन कर देते हैं. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लासिफिकेशन. तो ये x क्या है? ये कंटिन्यूस अगर हम उसको असाइन करेंगे, उसकी वैल्यू को लेबल करेंगे x को कंटिन्यूस वैल्यू के साथ, तो वो हमारे पास रिग्रेशन बन जाती है. सो वी विल कवर द पॉलिनोमियल कर्व फिटिंग इन रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन. यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी आप लोगों की आएगी, उसको आपने करना भी होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा. सो इन क्लासिफिकेशन वी विल डिस्कस द ID3 एल्गोरिथम, नाइव बेस्ड क्लासिफायर. सो द सेकेंड टाइप इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. The type of machine learning in which the training data consists of set of input vectors. So again यहाँ पे vectors की बात की जा रही है. मैंने पहले भी x को vector लिया, input जो भी मेरे पास training data आता है. So यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? Vector की बात. Without any
कॉरिस्पॉन्डिंग टारगेट वैल्यूज मीन कि उसका कोई भी लेबल मौजूद नहीं होता। इफ़ हमारे पास ट्रेनिंग डेटा का लेबल मौजूद हो तो वो सुपरवाइज लर्निंग, अगर लेबल मौजूद ना हो ट्रेनिंग डेटा का तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग। सो इन अनसुपरवाइज लर्निंग वी विल कवर द क्लस्टरिंग टेक्निक, determine the similar groups of X. So we will cover KNN algorithm in clustering. So density estimation और dimensional reduction इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इसके कोई एल्गोरिदम को हम नहीं डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। So डिटरमाइन दी सिमिलर ग्रुप्स ऑफ एक्स मीन के इसके अंदर क्या है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आपस में सिमिलर है उनको एक क्लस्टर के अंदर रख दें और एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर के दरमियान में सिमिलैरिटी जो है वो नहीं होंगी, अगर वो सिमिलर हैं तो वो एक ही क्लस्टर के अंदर हमारे पास उन इनपुट्स को हम रख देंगे। सो द थर्ड टाइप इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। In reinforcement learning, find the action that maximize a reward, for example chess playing agent। तो इसके अंदर क्या है कि इसका रिवॉर्ड किस तरह से कि अगर एक चेस प्लेइंग गेम जो है वो एजेंट जो है वो विन कर जाता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं पॉजिटिव कि आप बहुत अच्छा खेले हो, लिहाजा नेक्स्ट टाइम जब भी वो खेलेगा तो वो देखेगा कि मैं इस तरह से खेला था तो मैं विन कर गया था और मुझे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला था, तो लिहाजा अब भी मैं उसी तरह से खेलूँ। तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि उसी तरह से खेलने की। और इफ़ क्या है कि चेस जो एजेंट है वो हार जाता है तो हम उसको नेगेटिव क्रेडिट दे देंगे, उसको रिवॉर्ड जो है वो नेगेटिव दे देंगे, तो अगेन दोबारा वो उस तरह से नहीं खेलेगा। सो हम हमेशा इसके अंदर क्या करते हैं, फाइंड द एक्शंस दैट मैक्सिमाइजेस द रिवॉर्ड, for example chess playing agent। So this is also a very active area of ML research, but we will not cover this type of machine learning in this course। So now अब हम जो हमारी जो रिग्रेशन प्रॉब्लम है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि पॉलिनोमियल कर्व फिटिंग को हम देखेंगे। सो जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट गिवन एन ऑब्जर्वेशन ऑफ इनपुट xi with the corresponding observation of output ti, find the f of x that predict t for a new value of x। So this is a polynomial curve fitting problem। इसको अगेन स्लाइड को आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करें और आप इसको दोबारा फिर से एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें कि कहना क्या चाह रहा है और पूछ क्या जा रहा है, बताया क्या गया है हमें और पूछा क्या जा रहा है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमें। So just look at this problem again, that given an observation of input xi with the corresponding observation of output mean we have input and target ti। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेबल डेटा आ जाए, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जो है वो लेबल हो, तो वो कौन सी लर्निंग होती है, वो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग होती है। सो वी हैव लेबल डेटा विद एन ऑब्जर्वेशन मीन के हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होंगी। वी विल फाइंड द एफ ऑफ एक्स दैट प्रिडिक्ट टी मीन जो आउटपुट हमने प्रेडिक्ट करनी है फॉर न्यू वैल्यू ऑफ एक्स इसके लिए। सो इसी को दोबारा फिर देख लें। द पॉलिनोमियल कर्व फिटिंग, सपोज वी आर गिवन x which is x, again this is a small case alphabet and the bold, so this will represent a vector, जो कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिखा, वेक्टर को आप कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इस तरह से जब आपने लिखना हो तो क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज जब हटाएंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर बन जाएगा। इन द सेम वे वी आर गिवन x vector mean values together with the corresponding observation of the value t is the जो है वो उसकी टारगेट है। फॉर एग्जांपल x1 का टारगेट वैल्यू जो है वो t1 है, x2 की टारगेट वैल्यू t2 है। इन द सेम वे फॉर x3 द टारगेट वैल्यू फॉर x3 इज t3। वी हैव टू फाइंड द फंक्शन विच कैन मैप न्यू x टू t, जो भी नया x आया उसको हम t के ऊपर मैप करना, ये हमारा टारगेट है। सो जस्ट लुक एट दिस मैटलैब कोड। द फर्स्ट मैटलैब कोड किस तरह से है कि हम n इज 10, आई एम गोइंग टू जनरेट 10 नंबर्स जो जिसके अंदर क्या है x भी हो और उसकी लेबल हमारे पास t भी मौजूद हो। सो x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1, तो x की रेंज जो है वो 0 से 1 तक है और ये साइन फंक्शन के थ्रू जनरेट होके ये इस तरह से इसको प्लॉट किया जा सकता है। ये मैटलैब का कोड है, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा मेन पर्पस क्या है।
कि हम क्या कर रहे हैं, हम 10 वैल्यूज x की और उसके अगेंस्ट उसको क्या कर रहे हैं, x को टू साइन फंक्शन में पास करके उसकी टारगेट वैल्यू जो है ना वो गेट कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्लॉट कर रहे हैं। सो नोटिस दैट data is generated through the function sin 2x. So but real world data always noisy. जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर इमेजेस की बात करें तो इमेज आप कैप्चर करते हैं, 3D रियल वर्ल्ड आपका होता है, उसको आप 2D के ऊपर मैप कर रहे होते हैं, हमेशा नॉइज उसके अंदर होता है। सो आई विल add some noise in this data. So मैंने रैंडमली एक नंबर जनरेट किया और उसको ये 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करके एक स्मॉल सी अमाउंट उसके अंदर n के अंदर n ले लिया और n को t के अंदर ऐड कर दिया। तो टारगेट के अंदर जो है वो एक्चुअल जो t था उसमें थोड़ी सी नॉइज ऐड करके उसको प्लॉट किया मैंने। So after adding this noise, so just look at this curve. The green curve represent the sine function. Sine function इस तरह से होता है, cos function किस तरह से होता है, cos function यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है, और this is a क्या है, this is a sine function। और ये जो ब्लू डॉटेड हैं ये हमने प्लॉट किए हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये लाइन के ऊपर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने उसके अंदर थोड़ा सा नॉइज ऐड किया है। So just look at this point that real world data has two important properties. First, underlying regularity. So कोई ना कोई उसके अंदर रेगुलरिटी होती है जिसको हमने फाइंड करने की कोशिश करते हैं अपने फंक्शन के दौरान, और जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं कि अंडरलाइन बिहेवियर क्या है उसका, हर डेटा का बिहेवियर ही फंक्शन उसका होता है और उस फंक्शन को हम लर्न कर रहे होते हैं। मीन बिहेवियर कह लें या उसको आप फंक्शन कह लें या उसकी अंडरलाइन रेगुलरिटी कह लें। सो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर करप्टेड बाय नॉइज। सो हमारे डेटा के अंदर हमेशा क्या होता है, नॉइज होता है। वी हैव टू फाइंड अंडरलाइन रेगुलरिटी which is the mapping of x to t which is sin x। तो sin x फॉर एग्जांपल अगर आपको sin x, अब प्रॉब्लम बेसिकली क्या है इसको दोबारा फिर देखें। I have generated the data by using this code and I have the xi and the corresponding value of t for n observation, n is equal to 10। I have to find the function f। सो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन इनिशियली मुझे क्या कर दिया, इस तरह से डेटा जनरेट करके मुझे उन्होंने डेटा दे दिया है, फंक्शन नहीं दिया। तो प्रॉब्लम के अंदर कभी भी फंक्शन नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे 10 साल का जो हमारे पास 10 ईयर चैलेंज था उसके अंदर भी क्या है कि 2019 की इमेज है, 2029 की इमेज है। तो यहाँ पे बिटवीन क्या चीज़ आती है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रेडिक्ट करना होता है, वो चीज़ खुद से सीखनी होती है। तो हमेशा फंक्शन हमें नहीं गिवन होता, तो यहाँ पे भी हमें sin 2x जो आपको दिया था फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन गिवन नहीं होगा बल्कि उसकी जस्ट x and t, x इनपुट और t उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ही दी गई होगी। So just look at this slide. This is a very important slide that we have x and corresponding value t, मीन कि उसका जो है वो पॉइंट्स हमें ये दिए गए हैं हर x के लिए t का। So we are going to find the function which generate which will capture the underlying regularity for that function। So to find this curve मैं क्या करता हूँ, मैं एक पोलिनोमियल ये वाला जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। So I am using the m degree polynomial। So y of x comma w, w is bold small, again क्या चीज़ है, ये वेक्टर है, which is equal to w naught plus w1 x1 x की पावर 1, w2 x पावर 2, w3 x पावर 3 up to wm x पावर m। So this is m डिग्री पोलिनोमियल। so इसके अंदर क्या है कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये इस वजह से कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ऐसा डेटा आता है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन से आया, अगर लीनियर से आया। So if the data have the corresponding xt is linear, तो लीनियर डेटा है वो लीनियर कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसके अंदर में रेगुलरिटी लीनियर है, तो क्या करेगा, इसकी w की लर्निंग अब करनी है कि क्या हो जाएगा, ये बाकी सारे w's को 0 कर देगा, जस्ट लीनियर वाले को 1 कर देगा, तो वो लीनियर इस तरह से कैप्चर हो जाएगा। if the data is generated by a quadratic function, सो क्या हो जाएगा, वो इस w2 को 1 कर देगा, बाकी सबको वो 0 कर दे, इसके ऊपर जितने भी हैं तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैप्चर कर लेगा। इन द सेम वे ये सारे m डिग्री पोलिनोमियल का मिक्सचर भी है,
तो ये क्या करेगा, किसी भी तरह की कर्व को जनरेट करने के लिए उस तरह के डब्ल्यूज को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा कि वो उस तरह के अंडरलाइन रेगुलरिटी जो है ना वो कैप्चर हो सके। सो आई विल राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म दैट x ऑफ y ऑफ x कॉमा w इज इक्वल टू j समीशन j इज इक्वल टू 0 to m wj and dot x bar j where m is the order of polynomial. The function y of x comma w is a non-linear function x, non-linear. So यहाँ पे x की पावर है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, up to x की पावर m है, तो ये non-linear है x के अंदर। And this function is a linear function of the parameter w। देखिए w को देखें तो यहाँ पे देखें w1, w2, w3 up to wm, तो m w की पावर नहीं है तो ये linear आ जाएगा। So our model is लीनियर मॉडल। सो किस तरह से मैंने, अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने क्या करना है, मैंने एक m डिग्री पोलिनोमियल ले लिया, सारे जितने भी डिग्री पोलिनोमियल के जो कह लें मिक्सचर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। अब मेरे पास वो w's उस तरह की एडजस्टमेंट मैंने करनी है, मैंने सीखनी है, मैंने लर्न करनी है कि वो वाला फंक्शन जो है ना वो मेरा बन जाए जिससे डेटा जनरेट होके आया है। सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट दैट fitting corresponding to finding the optimal w's, we denote it as w star। कि अगर हमारे ये w's वो वाले बिहेवियर को कैप्चर कर लें तो वो वाला w का जो वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो w स्टार के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द optimal w can be found by minimizing an error function। so how can we generate, we can generate the error function। यहाँ पे भी हम error function बनाएंगे just as we generated the error function in our genetic algorithm। again I will generate the error function। so just look at this error function, ये भी बड़ा important है हमारे पास के ये किस तरह से काम करता है और इस प्रॉब्लम को हम ओवरऑल देखेंगे भी कि किस तरह से चल रही है। सो दिस इज आवर एरर फंक्शन दैट y ऑफ x कॉमा w माइनस टी n होल स्क्वायर समीशन n इज इक्वल टू 1 to n। ये हमारे पास एरर है 1/2। इसकी भी थोड़ी सी हकीकत है जो कि आगे जाके हम बताएंगे जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव वगैरह लेते हैं तो अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो इस वजह से 1/2 आता है। सो किस तरह से अब क्या होगा कि किस मेन अब प्रॉब्लम किस तरफ हमारी जा रही है। सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, हमने तो क्या करना था, हमें ये x गिवन था और ये t गिवन था, हमने वो वाला फंक्शन फाइंड करना था। फंक्शन चूंकि अब हमारे पास नहीं है, तो फंक्शन जब हमारे पास नहीं है तो हमने क्या किया, हमने m डिग्री पोलिनोमियल ले लिया जिसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। So now I will put the first x in this equation। so जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या करूँगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू जो भी जनरेट होकर मेरे पास आती है, I will put this value in my polynomial function। और जो भी उसकी y की वैल्यू आएगी उसको मैं क्या करूँगा, t के साथ माइनस कर दूंगा। तो अगर वो एरर क्या होगा, कम होगा, मीन कि अगर वो अंडरलाइन रेगुलरिटी उसने कैप्चर कर ली होगी तो जो y की वैल्यू होगी वही t1 की वैल्यू होगी या उसके क्लोजर होगी। इन द सेम वे if the underlying behavior we have captured that underlying behavior, then I will put the value of x2 in my polynomial equation। so उसकी y of x comma w की वैल्यू क्या होगी, t2 के करीब होगी। इन द सेम वे फॉर ऑल दीज डेटा सेट ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी कि मेरा एरर जो है वो क्या होगा, ये x और t की वैल्यू जो है वो इनका डिफरेंस कम होगा अगर मैंने वो अंडरलाइन रेगुलरिटी को कैप्चर कर लिया। और अगर मैंने अंडरलाइन रेगुलरिटी को कैप्चर नहीं किया, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग को फाइंड नहीं किया, मेरे पास ऑप्टिमल डब्ल्यूज नहीं आए, तो वो क्या है, ये एरर की वैल्यू मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मैं क्या करूँगा, फिर मैं अगेन दोबारा फिर से उन डब्ल्यूज के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा कि वो वाले डब्ल्यूज फाइंड करूं जिससे ये वाला एरर जो है वो मेरे पास जो है वो कम से कम हो। तो बेसिकली हम प्रॉब्लम को किस तरफ लेके जा चुके हैं। हमने शुरू में बात की कि हम फंक्शन को फाइंड करना है और फंक्शन हमने ये बना दिया कि ये वाला फंक्शन है, हमने m डिग्री पॉलिनोमियल ले लिया। अब इस फंक्शन की अच्छी वो रिप्रेजेंटेशन अंडरलाइन रेगुलरिटी को कैप्चर करने के लिए मैंने इस फंक्शन को क्या किया, मैंने मैप कर दिया डब्ल्यूज के ऊपर। क्यों? क्योंकि x तो वही है जो हमारे पास आनी है इनपुट, जो हम रैंडमली इनिशियलाइज। अब देखें एक चीज़ और भी होगा
यहाँ पे पहली दफ़ा जब हम W's का वेक्टर लेंगे वो रैंडमली हम जनरेट करेंगे या किसी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से हम ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा W's का इनिशियली। तो गलती या एरर क्यों आएगा, हमारे पास एरर जो आएगा वो इन्हीं W's की वजह से आएगा, क्योंकि x तो हमारे पास जो है ना वो वही है जो इनपुट के अंदर आ रहा है। सो दिस इज माई एरर फंक्शन। सो फॉर ऑप्टिमल W कैन बी फाउंड बाय मिनिमाइजिंग एन एरर फंक्शन। सो मेरी जो प्रॉब्लम थी फंक्शन को फाइंड करने की, अब वो किसके ऊपर मैप हो गई है, टू मिनिमाइज माई एरर फंक्शन। So I will always try to minimize the error function. To minimize that error function, I will try to find the best optimal, mean के optimal W. If I find the optimal W, so ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वो वाला फंक्शन बन जाएगा जिससे वो डेटा जनरेट हो के आया है। और ये कब ऑप्टिमल होगा, जब ये एरर फंक्शन जो है वो मेरे पास मिनिमम होगा, या जब वो मेरे पास अंडरलाइन रेगुलरिटी जो है ये वाला फंक्शन जो है वो कैप्चर कर लेगी। So just look at these questions, that can error function be a negative? The second question क्या है यहाँ पे, the error function ever be zero? So मैं आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग इसका ज़रा आंसर ज़रा सोचें। आई होप आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ही लगी होगी आप लोगों को कि हमने क्या करना था, हमने एक प्रॉब्लम को फाइंड करना था फंक्शन को। तो वहाँ पे फंक्शन को फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को मैंने बनाया, और पॉलिनोमियल के अंदर W's हैं, W's ऑप्टिमल होने चाहिए। ऑप्टिमल W के लिए क्या होगा, ये एरर फंक्शन मिनिमाइज होगा। नाउ आई विल ट्राई टू मिनिमाइज माई एरर। हाउ कैन आई मिनिमाइज दिस एरर, बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमल W। जब ऑप्टिमल W आएगा तो एरर कम होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी रेगुलराइज उसकी जो है वो उसकी अंडरलाइन बिहेवियर उसने कैप्चर कर लिया होगा जब एरर हमारे पास कम से कम होगा। ये हमारे पास अब ये एक नई थ्योरी बन गई है। इंशाल्लाह इसको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसको दोबारा फिर बार बार सुने ताकि आप लोग जो है वो इस कर्व फिटिंग प्रॉब्लम के साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी हो सके। इंशाल्लाह इसके आगे फर्दर इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर हमने कुछ टर्म्स ऐड करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, रेगुलराइजेशन टर्म, तो किस तरह से वो होता है, ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।